बट आपने ये भी पूछा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर भी ऐसा कुछ रिस्क है कि ही कैन प्रॉब्ली हरास यू, वो उन्होंने बोला नहीं, वो फियर नहीं है. She is very clear about that. She is very clear about it. So does he have a physical relationship with your Masi? Yes, I also think he is also involved with my sister. तो जब उसने अपने फादर को देखा, अपनी मदर को हैंग करते हुए, और कुछ चीज़ें उसने देखी जो डिस्टर्ब कर गई, उसके लिए देखिए सर्वाइव करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. कर्ण ने एक बार कृष्ण जी से पूछा, मैं पैदा इतनी अच्छी फैमिली में हुआ लेकिन मेरी मदर ने डिसोन कर दिया. हर व्यक्ति के अंदर वो व्यक्तित्व परमात्मा का है. कोई आदमी उसमें हार जाता है उस मोमेंट में, और कोई आदमी कहता है नहीं मैं लड़ जाऊंगा. Welcome to the next episode of our podcast. We will continue the series with our 5D matrix, where in this episode we will look at another case study and we will discuss about the problems that usually people face. Each one of us would have faced, not exactly the same, but yeah, certain things that when we ask questions to Richa, who's with us today again, right, to empower us, enlighten us with the questions that the case study that we're referring to has. And you would be able to relate to certain extent कि ये सब हम लोग के लाइफ में ऐसा होता है. But does that lock certain things? And also especially how much does it lock and how much is karma to play a role in this is what we would try and unlock with Richa today. Richa, thank you so much again for coming over. So the case study that we have today, I have seen or I've heard, I have sat down. So my perception is there are multiple things that have played certain roles, right, in her way she is today probably, or how, the way she thinks, the way she acts. So इनके life में I think things started when she wanted to go abroad. Yeah. I think her primary thing is that she wants to go abroad. We'll get to why, where you will let us unlock those and enlighten us with it. But I think the main purpose of her is मेरे को बाहर जाना है abroad. So initially she tried going through the route that she could do her masters in the US or somewhere abroad. She tried to get a home loan, or she tried to get an education loan as well, but father denied. First thing is I wanted to move abroad for my study or job. So I've been trying like for 2 years, but कुछ हो नहीं पा रहा है. I mean मेरे को एक जगह मिल गया था. I got in college and everything. But my father didn't allow. I've already took the student loan and everything. उन्हें सब बताया था. तो he was like कि नहीं मैं जाने नहीं दूँगा. You are the only daughter. Then she's been trying that, okay, let me find a job and go there, which is also not happening for past 2 years, what she said. So again, I think classical example of what we've been discussing in the last 2 episodes, things are getting blocked for her. तो वही बार बार जो हम पिछले काफ़ी समय से बात करें, एनर्जी लॉक हो गई, कर्मा है. सो यू लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस केस स्टडी, राइट, उनकी एक वांट है. रीजंस हम बात करेंगे, बट उनकी एक वांट है, डिज़ायर है, जो भी आप कह लीजिए, सपना है कि मेरे को अब्रॉड जाना है. एजुकेशन वाइज ट्राई किया, फादर ने मना कर दिया. अब वो जॉब के लिए कर रही है कि जॉब की तरफ से चली जाऊँ, वो भी नहीं हो रहा. सो व्हाट इज़ दिस पैटर्न? सो गगन, यू फर्स्ट आस्क्ड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जहाँ आपने पूछा कर्मा, है ना. तो हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, कुछ भी, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हम एक कार्मिक स्पेस में कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं. मतलब कर्मा इज़ लाइक 2 people डूइंग सर्टन थिंग टू अचीव अ सर्टन आउटकम. तो जब हम किसी आउटकम को अचीव करना चाहते हैं तो उसके पैरामीटर्स होते हैं. मतलब आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपका रिजल्ट बुरा होगा, या आपका रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं, आएगा पर आपको दिख नहीं पाएगा. सो ये 3 पर्सपेक्टिव्स होते हैं जब हम कर्मा में रिजल्ट की बात करते हैं. अब ये बच्ची जिसकी हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं कि शी इज़ वांटिंग टू गो अब्रॉड, एक ड्रीम है, बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम है, और कोई बुरी बात नहीं है आपका अचीवेबल होना या अचीव ना कर पाना. और एक परसेप्शन है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मोटिवेटेड. लेकिन कई लोग मोटिवेटेड होते हैं पर वो काम नहीं होता. अब देखिए इसके पीछे देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स उसकी लाइफ में. वो बाहर जाना चाहती है, क्या वो सच में एंथुजियास्टिक है बाहर जाने के लिए, या उसका वो ड्रीम है, या वो किसी चीज़ से भाग रही है ना. तीनों पर्सपेक्टिव्स है. इसके केस में क्या है, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द पार्ट टू बी अनलॉक्ड. कि हम जैसे मेरे पास आई तो 2 साल से मैं बाहर नहीं जा पा रही, आई वांट टू गो आउट. बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, जाना चाहिए. अब बच्चे ने होम लोन के लिए बच्चे ने स्टूडेंट लोन के लिए भी अप्लाई किया, स्टूडेंट लोन भी पास हो गया.
बट फादर ने ना बोल दिया, जबकि उसने अपने फादर को यही बोला था आई वुड रीपे इट, यू डोंट हैव टू, सो बट स्टिल इट वाज डिनाइड. अब इसके केस में, इस बच्ची के केस में, एवरीथिंग वी हैव केप्ट हर नेम हिडन बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन हर लाइफ विच जो हम सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रूप में दिखाएं तो वो चीज़ ख़राब होती है. सो हमने उसका नाम और उसका फेस हिडन रखा है. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स. सो उसकी केस में, उसकी लाइफ में, उसके फैमिली में देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा हैपनिंग. तो उसकी वजह से वो भागना चाहती है. तो जब हम किसी चीज़ से भागते हैं तो हम इमोशनल स्पेस में एनर्जी क्या दे रहे हैं? हम अपने कर्मा में परफॉर्मेंस ये कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ से भागना है, इसीलिए मुझे अब्रॉड जाना है. मैं देखने में ये कैसा दिख रहा है कि बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, बच्ची बहुत इसका डिज़ायर है, ड्रीम है, ये बाहर जाना चाहती है, एस्पिरेशनल बच्ची है, बट बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है. So maybe this is not manifestation. She's not manifesting to go abroad, or if she's manifesting to go abroad, the reason is she's running away from something. Of course she's running away from her own past और कार्मिक स्पेस. क्योंकि देखिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ एज एन पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट की, आपका एक कार्मिक अकाउंट है जिन लोगों के साथ आप आए हो. अब इनके केस में इनका जो कार्मिक अकाउंट है, इसमें इनकी मदर भी इन्वॉल्व है, फादर भी इन्वॉल्व है, ब्रदर भी इन्वॉल्व है, और रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व है, बुआ, मासी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द ड्रामा, है ना. तो अब इस केस में, इस बीइंग अ फीमेल, उसका सबसे पहला चीज़ क्या है? अपनी शक्ति को जानना. बीइंग अ वुमन, उसको अपने आप को पावरलेसनेस में नहीं, पावरफुलनेस लर्निंग है एज पर द कार्मिक स्पेस. बट वो बच्ची वो देखने की जगह वो सोच रही है अगर मैं अब्रॉड चली जाती हूँ तो मैं इस ड्रामा से दूर हो जाऊंगी. बट वो ड्रामा ही उसको खींच रहा है, वो ड्रामा ही उसका सोल्यूशन है, वो ड्रामा में ही से उसको होके गुजरना है, एंड स्टिल शी विल गो अब्रॉड. बट यहाँ पे पहले उस कार्मिक स्पेस को क्लियर करना पड़ेगा, उससे पहले वो चीज़ उसके लिए क्रिएट नहीं होगी. So how does she do that? How does she clear that karmic case? Because she has a strong desire. ठीक है, reason could be multiple. कि एक होता है कि कई लोग होते हैं जो बाहर जाना चाहते हैं. When I was also studying, there were a lot of people in my college who had a very clear vision thought कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को अपना MS वहाँ करना है. कईयों को था मेरे को वापस आना है. Again very clear vision why, family or whatever. और कुछ थे जिनको जाना है, MS करना और वहीं सेटल हो जाना लाइफ. But there was no probably I am not a runner, and they have all gone. They are settled there, doing well. जिन्होंने वापस आना वो आके इंडिया में जॉब करें, and they are also happy. So same is the case. I could relate with this girl. She also wants to go abroad, but the reason is different. क्योंकि उसके घर में फीमेल्स को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती. फीमेल्स आर नॉट इन अ पावर पोजिशन. तो उसको लगता है अगर मैं अब्रॉड चली गई तो मैं वो पोजिशन एज अ वुमन एस्टैब्लिश कर पाऊंगी. यहाँ पे वुमनहुड भी वीक है उसके अंदर, मतलब उसका इमोशनल स्पेस, अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ कन्वर्सेशन विथ हर बिलीफ सिस्टम सेज दैट एज अ वुमन मैं कमज़ोर हूँ, अगर मैं ये अचीव कर लेती हूँ तो मैं प्रूव कर पाऊंगी. देखिए, प्रूफ करना कोई काम को और आप अपने ग्रोथ के लिए वो चीज़ कर रहे हो, दोनों का कार्मिक अकाउंटेबिलिटी और कार्मिक रिजल्ट बदल जाएगा. वेरिएबल्स बदल जाते हैं. तो जब वेरिएबल्स बदलते हैं, जो आपकी इमोशनल, हम रिलीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं, बात बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड द भावा. जब हम भावा की बात करते हैं, यहाँ भी जिस प्रकार का भाव होगा उसी प्रकार का रिजल्ट है उत्पन्न होगा. इट्स लाइक अ सीड. मतलब अगर आप एप्पल का सीड लगाओगे तो एप्पल ही आएगा, और अगर आप एप्पल का सीड लगा के सोचोगे कि बनानास आएंगे तो वो नहीं आएंगे. एज सिंपल एज दैट. तो अगर वो बाहर जाना चाहती हैं तो उसके केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको वो क्लियरेंस अपने इमोशनल स्पेस में, कार्मिक स्पेस में करनी पड़ेगी, जहाँ वो भागने की जगह सच में उसको क्रिएट करना चाहती है. सो एक तो है उनके जो भी चीज़ें उन्होंने बताई अपने फादर के बारे में, मदर के बारे में. सो लेट्स स्टिक टू द फर्स्ट वन वेयर इट इज़ फादर. सो एजुकेशन के लिए जाना चाहती थी, फादर ने ये लोन लेने को भी तैयार थी, बट फादर ने मना कर दिया, है ना, कि नहीं आप लड़की हो, आप नहीं जाओगे, यू आर द ओनली डॉटर, और व्हाटएवर ही सेड. एंड देन शी सेड मोस्ट ऑफ द न्यूज़ वाज शेयर्ड बाय माय मदर. मदर ने बोला पापा ने मना किया, है ना. और जब सामने कभी ऐसी कोई बात होती, नॉट कन्फ्रंटेशन एट ऑल, बट फादर सेड मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा, राइट. सो इज दैट एंड सो डू यू थिंक शी शुड हैव कन्फ्रंटेड सेइंग दैट नो दिस इज व्हाट माय मदर सेड, और शी डिड नॉट डू इट बिकॉज हिज फादर इज वेरी डोमिनेटिंग एंड दैट इज इम्पैक्टिंग हर, यू नो, एनर्जी लॉकिंग, कि वो मन में है, दिल में है, और अपना उन्होंने एक स्पेस बना लिया है, और अब वो उसको फादर से बात नहीं कर सकती,
और दूसरा कि इज शी कंफ्यूज्ड? आई वुड से शी इज़ फेयरफुल ऑल्सो, कन्फ्यूज भी हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी गगन मैं आपके कन्वर्सेशन को सुनते सुनते एक पॉइंट बोलना चाहूँगी कि हम ना अपने रिश्तों को, अपनी लाइफ को जीने के लिए हर आदमी ना एक मखौटा पहन के बैठा है, एंड हम ना उस ब्रीदिंग वर्केबल रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए मास्किंग कर लेते हैं अपने ऊपर, ताकि हम अगर वो मास्क ना लगाएं तो हम शायद उस इंसान के साथ 2 क्षण भी ना खड़े रह पाए, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो। और इस बच्ची के केस में इसने बहुत सारे मास्क लगा लिए। उनमें से एक मास्क है, इसने चाइल्डहुड में शी सॉ हर फादर बीटिंग हर मदर। तो जब उसने अपने फादर को देखा, अपनी मदर को हैंग करते हुए, और कुछ चीज़ें उसने देखी जो डिस्टर्ब कर गई, उसके लिए देखिए सर्वाइव करना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कई बार ना, जैसे अब इनके केस में बाहर जाना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्वाइवल मैकेनिज्म, कि अगर मैं बाहर चली जाऊंगी तो शायद मैं सेव हो जाऊंगी, लेकिन साथ में एक फियर भी है कि अगर मैं चली गई तो मेरी मदर को कुछ हो जाएगा। I think because I saw my father hanging my mother. But that's in the night, right? Are you sleeping with in her room with her? Did he do it in the night, or when did he do it? In the day? In the night. तो आप तब घर में ही हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप सो रहे हो ना दूसरे रूम में, क्या आप कुछ कर सकते हो उसके बारे में? Does that create hatred in your mind for him? Because his younger brother was also there. So they both of them did it. Yes. तो देखिए, जो भी डिज़ायर स्ट्रॉन्गर होगी, अब फियर भी अगर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो भी वो चीज़ आपको वही मैनिफेस्ट होगी। मैनिफेस्टेशन होती है, लेकिन मैनिफेस्टेशन होगा क्या, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं सुबह व्हेन आई वाज गेटिंग ड्रेस्ड, देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग बाय माय सोल। उसने बोला, हम जब किसी को बहुत हेट करते हैं ना, तो हम उसे अत्यधिक प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि आप उसको अपनी पूरी एनर्जी दे रहे हो। मतलब आप उसे इतना हेट कर रहे हो कि ही हैज़ बिकम योर लवर। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग कि आप एनर्जी स्पेस में भी समझिए कि जिस चीज़ को आप हेट कर रहे हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी 24 घंटे हेट्रेड, आप और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे। इतना तो एक प्रेमी भी अपनी प्रेमिका के बारे में नहीं सोचता। तो जिस तरह से ये बच्ची भी है, शी इज़ ऑलवेज इन द फियर कि कुछ हो जाएगा। एवरी डे व्हेन शी गोज़ टू हर जॉब ऑल्सो, तो वो यही सोच के निकलती है कि पता नहीं घर जाके क्या न्यूज़ मिलेगी। I don't know. अभी भी ऐसा है, if I'm working, बहुत प्रेशर है, you can't think of anything, but back of my mind is always like कि अभी क्या हो रहा हो, अभी कुछ हो ना जाए। अब मेरे फादर क्या करेंगे? क्या मेरी मदर को घर से तो नहीं निकाल देंगे? He didn't have that much audacity to do that. लेकिन अगर वो उसी स्पेस में रहती है तो उसके लिए भी बहुत चोकिंग पॉइंट है। तो चोक ना हो, ब्रीदिंग स्पेस ले, तो वो जॉब कर रही है। पर पहला ऑप्शन उसको यही है कि मैं यहाँ से एस्केप करूँ, बाहर चली जाऊँ। बट सारी चीज़ें जिस जगह से मैनिफेस्ट हो रही है, जिस एनर्जी से मैनिफेस्ट हो रही है, वो उसको चाह के भी कोई और मेंटल, उसका माइंड ना उसको कोई और सोल्यूशन दिखाई नहीं पा रहा है। तो वो क्या करती है कि जॉब कर रही है, फिर वो एक तरफ से ये सोचती है कि मैं कल को अपना बिजनेस शुरू कर लूँ, तो चलो मैं 1-2 साल ये जॉब करूँगी तो मैं सीख जाऊँगी। बट एट द एंड उसके माइंड में पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है अनकॉन्शियसली, कि मुझे अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना। सो दैट्स व्हाट आई यूज द वर्ड कंफ्यूज्ड, कि 3 चीज़ें इसमें। एक, जाना है, आई हैव टू रन अवे। सेकेंड इज, अगर मैं चली गई, मतलब वो मैनिफेस्टेशन के रुकने का क्या करना है, रुक चली गई तो मदर का क्या होगा। तीसरा, कि मैं बचपन से देख रही हूँ, एंड शी हैड वन पॉइंट वेयर शी सेड कि माई फादर वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज बोर्न। मेरी फैमिली में कोई भी लड़कियों के साथ नहीं खेलता था, मेरे फादर खेलते थे मेरे साथ। ही ऑलवेज ट्रीटेड मी एज अ बॉय। सो एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमोशन भी है फादर के प्रति।
since my childhood, my father was the ideal father. He loves me a lot. You know, हमारी फैमिली में whenever a daughter child born, तो they were like कि कोई बात नहीं, next boy हो जाएगा. And their father never played with their daughters. But my father always did. He's always there. He treat me like a, boy. I think he loves me more than my brother. But when I saw and heard all of these things, I think my life crumbles. कि बचपन में उन्होंने मेरे को ऐसे मतलब शी वो नेवर इसी वजह से कन्फ्रंट भी तो नहीं कर पा रही ना गगन So की, she- वो कहीं ना कहीं वो लाइकिंग भी है. करेक्ट सो शी नेवर इन हर डिस्कशन और व्हाटएवर शी वाज टेलिंग यू फादर के लिए कहीं उसके हेट्रेड के वर्ड्स नहीं आए. हाँ ही हैज गॉट रिलेशनशिप्स, ही हैज नॉट गॉट रिलेशनशिप विद कपल ऑफ पीपल, व्हाटएवर ही हैज डन, बट कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग शी इज इन 3 स्टेट्स. सो शी इज कंफ्यूज कि मैं कन्फ्रंट करूं ना करूं. माय हाँ, फादर इज तो वो राइट. लव जो या जो उसका अपने फादर के साथ Correct. जो उसने एक्सपीरियंस किया है रिलेशनशिप, उसकी वजह से वो कंफ्यूज है कि इज ही द कैरेक्टर व्हाट जो मैं देख पा रही हूँ. दूसरा फियर कि जो उसको मदर के साथ उसने देखा बचपन में वाज बीइंग हैंग्ड, तो वो कंफ्यूजन है वहाँ पे. एक ये कंफ्यूजन, एक ये फियर, और तीसरा खुद को सरवाइव करने का. तो ये 3 जो उसके लाइफ में इमोशंस चल रहे हैं मेजर, वो उसको कोई डिसीजन मैनिफेस्ट करने नहीं दे रहे हैं. तो उसकी लाइफ इस समय ऐसे है ना, इट्स लाइक हैंगिंग. मतलब ब्रिलियंटली इंटेलिजेंट गर्ल पर ग्रोथ नहीं कर पा रही है. काम पे जाती है तो काम में भी बॉस भी वैसा ही है, क्योंकि वो, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, आप जिस तरह के वाइब्रेशन पे हो वही तरह के लोग आप अट्रैक्ट करोगे. करेक्ट. सो फ्रॉम अ वन इज़ ऑफ कोर्स, एक हम कई बार बात करते हैं इन पे कि जिसको जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करें. सो इफ़ वी लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि इनको प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम की वजह कुछ चीज़ें अब किस इनके दिमाग है या किस स्पेस में वाइब्रेट कर रही हैं. एक है वो रीज़न क्या है, मतलब अंडरलाइंग जब कहते हैं रूट कॉज क्या है. तो फादर मदर कुछ कर नहीं रही है, लेकिन इनको फियर है कि मदर को कुछ ना हो जाए. सो दिस इज़ kind of that space which you can't avoid. Maybe she said she's 24, so I'm assuming his father would be somewhere close to 50, 52. Yeah. Right? So he has a way of living and he would also be understanding कि ये बच्चों पे क्या impact आ रहा है मेरे. So what can he also do? See, जब तक क्लाइंट के पेरेंट हमारे पास नहीं आएंगे तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो उसको वहाँ पे क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे वो एक फादर का रियल स्टेट एज अ चाइल्ड देखा है और एक फादर का एज्यूम्ड स्टेट देख रही है. मतलब वो 2 स्टेट्स में अपने फादर को देख रही है. तो वो उस कैरेक्टर को असेस ही नहीं कर पा रही कि एक्चुअल कैरेक्टर है कौन. कि भाई क्या मेरे फादर रियल में एक हीरो है या मेरे फादर रियल में एक विलन है ना. क्योंकि एक कैरेक्टर है जिन उनके घर में लड़कियां नहीं होती, शी इज़ द ओनली गर्ल. तो उसके फादर ने बचपन में उसके साथ खेला, प्रेम किया और उसके लिए स्पेस लिया. दूसरा उसके फादर का कैरेक्टर है जो कि पैसे वाले पावरफुल मैन है. तो उसने देखा कि क्योंकि पैसा है तो लोग उनकी बातों को कभी कुछ काटते नहीं है. अब तीसरा पॉइंट है जहाँ पे उसने बचपन में देखा या उसने अपनी मदर से सुना है. दिस इज़ नॉट अ वेरी क्लियर स्टोरी, बट शी इज़ नॉट क्लियर दैट हर फादर एंड हर अंकल ट्राई टू हैंग हर मदर. तो वहाँ पे एक और चैलेंज है जहाँ वो अपने फादर को कभी उसने सामने से उसको कुछ बोलते हुए नहीं देखा. जितना भी उसने सुना है अपनी मदर के थ्रू सुना है कि पापा ने बोला ये मत करो, पापा ने बाहर अब्रॉड जाने के लिए मना कर दिया, पापा ने लोन के लिए मना कर दिया. पापा ने और उसने कभी डायरेक्टली वन ऑन वन नहीं इंटरेक्शन की. तो अब यहाँ पे माइंड कंफ्यूज्ड है कि ये इंसान है कौन, या मैं इसके साथ किस लेवल तक बात कर सकती हूँ. और आपने बीच में उससे ये भी पूछा व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स her father has with little senior aged females, little very young, कोई इनकी cousin ही है जो 3 साल शायद इनसे बड़ी हैं. So maybe she's 24, so that girl is 27. बट आपने ये भी पूछा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर भी ऐसा कुछ रिस्क है कि he can probably harass you, which is very common these days, people hide it, but ये चलता है. तो वो उन्होंने बोला नहीं, वो फियर नहीं है. She is very clear about that. She is very clear about it.
Is my it mother's somebody from your sisters. mother's family? Is there a woman from your mother's family who your father is involved with? Yes, Is it your own Masi? yes. So that is more painful. Yes. And somebody from that family told you? I heard my father's recording. So does he have a physical relationship with your Masi? Yes, I also think he is also involved with my sister, cousin sister. Okay. Is he the father of that sister also? That's what you feel? No. Okay. She's own- मेरी मासी की बेटी है वो. और उसके साथ भी आपके फादर का रिलेशनशिप है? I think That scares you that tomorrow you are also not safe? no. It never came to my mind कि I'm not safe with my father. एक पर्सपेक्टिव है कि हाँ तो भाई यही पे पॉइंट जो गगन मैंने अभी बोला ना कि वो अपने फादर के एक ऐसे कैरेक्टर को भी देखती है जहां उसके फादर एक हीरो है ना, तो उसकी वजह से वो ये पॉइंट उसका क्लियर है, पर एक कंफ्यूजन भी है। तो दोनों जो मल्टीपल स्टेट्स चल रहे हैं ना, जो उसके कार्मिक अकाउंटेबिलिटी को क्लैरिटी नहीं दे रहे कि मैं क्या चूज करूं, डू आई सी माय फादर एज अ विलन, डू आई सी माय फादर एज अ हीरो। सो शी ऑल्सो मेंशन्ड कि शी हैज़ अ फियर कि मैं अपने पापा से बात करूंगी तो क्या होगा, हाँ, राइट? दैट्स ऑल्सो फियर। सो ओनली क्योंकि इतना सारा नेगेटिव भी है ना, जब बात करेगी तो ऐसा तो है नहीं कि उस समय वो कंट्रोल कर पाएगी। देखिए, टू कंट्रोल योर इमोशन, आप जब जैसे अब मान लेते हैं, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अरे गुस्सा नहीं आना चाहिए, शुड ऑलवेज बी हैप्पी इन द गुड स्पेस, बट व्हेन देयर इज अ मोमेंट, आर यू एबल टू सी योर सेल्फ और स्टॉप योर सेल्फ? बिकॉज द नेगेटिव इमोशंस वो सबसे स्ट्रांग होते हैं। तो जब आप किसी से कन्वर्सेशन करोगे, आपका हेटरेट भी निकल सकता है, आपका कन्फ्रंटेशन में एंगर, जेलेसी, कोई भी इमोशन आ सकता है। तो वो उस चीज़ को अवॉइड कर रही है, बिकॉज एक साइड है जहाँ वो हीरो से स्टार्ट करेगी और कन्वर्सेशन कहाँ जाएगी, विलनस में ही जाएगी ना। तो क्यों, उसको क्या फियर है कि कल को मेरे मुंह से इस तरह की बातें ना निकले और मैं अपने फादर को लूज ना कर दूं। तो एक फियर अनकॉन्शियस में ये भी है दैट आई वुड लूज माय फादर। सो नाउ इफ शी वांट्स टू मैनिफेस्ट, फॉर एग्जांपल कि उसको बाहर जाना है, राइट? सो व्हाट डज शी डू? ऑफ कोर्स आपने बताया कार्मिक अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा उसको, तो वो कैसे क्लियर करे? उसके लिए बात करनी पड़ेगी, राइट? शी हैज टू सबसे पहले तो खुद को मेंटल क्लैरिटी लेनी पड़ेगी ना कि देखिए, अब जैसे हम बोलते हैं कार्मिक है, अगर आपका और मेरा कार्मिक है तो मुझे और आपको ही तो क्लियर करना पड़ेगा। क्या थर्ड पर्सन के आने से हमारे बीच में कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाएगी? मान लेते हैं देयर इज अ थर्ड पर्सन एंड वो हमें बोलता है कि अच्छा आप गगन जी आप ऐसे समझिए कि ऋचा ऐसा बोल रही थी, और मुझे बोले अरे गगन का ये मतलब नहीं था, आप समझिए। आपका माइंड कितना समझेगा उस थर्ड पर्सन की बात को? जब तक आप उस बात को इमोशनली इवैल्यूएट करके अपने इंटरनल स्पेस में एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आप थर्ड पर्सन की बात को कभी भी नहीं समझोगे। इसी तरह से मैं भी, तो जब तक हमारा इंडिविजुअल इमोशनल स्पेस उसको फुलफिल नहीं करेगा, तब तक हमारे लिए वो बात सिर्फ बात ही रहेगी। अब इनके केस में, जैसे ये बच्ची के केस में, कि शी इज नॉट एबल टू सी कि वो कहाँ रुक पाएगी, बिकॉज 24 ईयर्स की है। इमोशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जानना, मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ, जानना एक बात है, मानना दूसरी बात है ना। Correct. कि हम किसी चीज़ को कितना जानते तो सभी हैं कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, पर कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। और वो बात उस क्षण की होती है जिस क्षण में वो निर्माण होता है। देखिए, जब भी आपका इमोशन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना, वो बीज निर्माण हो जाएगा। तो आप जब किसी से बात कर रहे हैं, आप उस समय अपने इमोशंस को कितना हैंडल कर पाते हैं, कितना आप न्यूट्रल रह पाते हैं, कितना आप अपनी स्पीडिंग इमोशंस को ब्रेक लगा सकते हैं। कंट्रोल नहीं, ब्रेक नहीं, क्यों कर रही हूँ मैं, व्हाई एम आई डूइंग दिस? उस क्षण में वो सारा कार्मिक स्पेस क्लियर होता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं समझ पा रही कि मेरे फादर और मदर की अपनी कार्मिक अकाउंटेबिलिटी है ना, क्योंकि बच्चा वहाँ खड़ा है, उसका ब्रदर भी है ना, उससे 3 साल छोटा है, आई थिंक 4 साल, बट वो उसका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहा। आपने पूछा भी हाउ इज योर ब्रदर लुकिंग एट ऑल दिस, ही सेड नहीं, उसको कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता, ही इज नॉट बॉदर्ड। अब यहाँ पे शी इज गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व्ड, शी इज गेटिंग मोर एंड मोर डैमेज्ड। जितना वो खुद को डैमेज करती जा रही है इस सब प्रोसेस में, वो ये समझ ही नहीं पा रही कि ये डैमेज जो है उसको नहीं, मैं खुद को कर रही हूँ।
और इसमें वो अपनी मदर को भी स्ट्रांग होने की जगह वीक करती जा रही है, क्योंकि उनकी मदर उस पर डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि भाई मैं कैसे करूं। एवरी डे देयर इज अ रूटीन। व्हेन शी कम्स फ्रॉम द ऑफिस, उसकी मदर पहले एक पूरी स्टोरी लाइन सुनाती है उसको कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे I don't feel like going home आई नो because I know मैं घर जाऊंगी, my mother will always be like he did this, and my brother is like my mother did this or did this. But if I take a stand, I am the culprit. या आई नो। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि फिर आप जॉब भी क्यों करते हो? पिछले आप यहाँ से जॉब करने अगर गुड़गांव जा रहे हो या नोएडा जा रहे हो या जहाँ भी जा रहे हो, 8 घंटे में भी कुछ हो सकता है ना। ऐसा कहाँ लिखा है कि 8 घंटे में कुछ नहीं होगा? I think मुझे 8 to 10 hours मेरे घर से दूर मिलते हैं. That is more than enough to get me recharged for fighting. So you want to keep on fighting. जब अब 8 घंटे ट्रैवल टाइम लगे, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, तो ऐसा कहाँ लिखा है कि 12 घंटे में कुछ नहीं होगा? सो शी वाज लाइक कंप्लीटली ब्लैंक, क्योंकि उनके पास उस चीज़ का कोई आंसर नहीं था. क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हम फिजिकली इसी एरिया में प्रेजेंट है तो शायद चीज़ें नहीं होंगी, तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ पा रही है उस बच्ची के अंदर दैट उनका पेरेंट्स का अपना अकाउंट है एंड दे हैव टू क्लियर द कर्मा. नाउ इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उसका ग्रोथ है कि मुझे अब्रॉड जाना है, तो वो इस पूरी स्टोरी में अपने आप को फंसा के बैठी हुई है. ना वो खुद डायरेक्शन ले पा रही है, ना ही अपने मदर को डायरेक्शन दे रही है, जबकि उसका ड्रीम ये है कि मैं इतने पैसे कमाऊं, अब्रॉड जाऊं और अपनी मदर को साथ ले जाऊं, या मैं एक घर खरीद सकूं, इतने पैसे आ जाएं एंड आई टेक माई मदर देयर. बट दोनों में ही क्या है कि मुझे अपनी मदर को पकड़ के रखना है. तो एट द एंड शी हैज टू कम एवरी डे टू हर फादर. What if I can fight for her or give her the life she wanted? You can, but if you keep on fighting there, will you be able to give a life, or will you, if you create a new life, then you will be able to give her? What would be a better option? Move out and give her the life. So then why are you stuck there? Why are you stuck in your head? Adamant क्यों हो उस बात पे? Because पैसा कमाओगी, ग्रोथ आएगी, तभी तो अपनी मदर को लेके बाहर मूव आउट कर पाओगी. यस और नो? तो अगर मैं वहाँ बैठे बैठे जिद में कि नहीं मेरे को तो इनको प्रोटेक्ट करना है, पर किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है? प्रोटेक्ट करना है कि उनको वहाँ से निकालना है? पहले तो ये क्लैरिटी लो अपने माइंड में. यू वांट टू प्रोटेक्ट हर और वांट हर टू हैव अ बेटर लाइफ? I want her to have a better life. So with the same resources, can you give her a better life? No, that's why I've been trying. I just want कि मेरी मदर जहाँ रहना चाहती है वो वहाँ रहे. पर उसके लिए आपके पास एक सॉलिड वो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास. अभी तो आप अपने फादर के घर में रह रहे हो, आप इतने ही पैसे कमाते हो कि घर चला सको. कैन यू बाय अ हाउस राइट नाउ फॉर हर? No. सो आई डोंट नो इफ दिस इज रिलेशनल और नॉट. जनरली हम कहते हैं कि एक तो अब क्या कार्मिक अकाउंट वाली बात होगी, है ना. एक आपका हो गया कि फादर मदर को कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है अपना. एक इस बच्ची के साथ क्या है कि जनरली कहते हैं ना कि आपके ऊपर टफ सिचुएशंस जो आती हैं, दे आर नॉट रियली टफ सिचुएशंस. गॉड नोज कि आपको कितना टेस्ट करना है और कब तक टेस्ट करना है, आपकी और स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी शोल्डर्स की स्ट्रेंथ कितनी है और कितनी बढ़ानी है मेरे को, क्योंकि आगे जो मैं आपको देने वाला हूँ अच्छी चीज़, कैन यू हैंडल इट, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गो बाई दैट लॉजिक, वो भी कर्मा के हिसाब से, तो इनको सपोज ये टेस्ट है कि तुम्हें कैसे मतलब देखना है कि तुमने क्या देखा, तुमने क्या फील किया और तुमने क्या सुना. इनके केस में तीनों चीज़ें कि आपने अपने फादर के बारे में क्या फील किया है. फीलिंग अलग है उसकी, फीलिंग अलग है, पॉजिटिव है क्योंकि उन्होंने वो देखा है, फील किया है. एक है जो उन्होंने कुछ चीज़ें देखी हैं, वो भी पॉजिटिव ही हैं, मोर पॉजिटिव लेस नेगेटिव. एक है जो उनको फीड की जा रही है, राइट, कि उन्होंने खुद कुछ नहीं देखा है. सो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं. नाउ इफ दिस इज अ टेस्ट फॉर अ पर्सन, सो हाउ डज शी क्लियर दैट टेस्ट? बिकॉज आई डोंट थिंक माई थॉट सेज कि इनको बाहर जाने का मैनिफेस्टेशन है या अंदर से आ रहा है. इट इज जस्ट एन एस्केप राउट कि मेरे को इस सिचुएशन निकलना है, एंड गॉड इज सेइंग नो, आई विल नॉट लेट यू गो आउट टिल द टाइम यू solve this problem. This is a problem I have created for you. वेरी ट्रू. क्योंकि इसमें वो अपने फादर से नहीं अपनी मदर से भागना चाहती है. उसको ये पॉइंट समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो सुन रही है ना, वो उसको कंसेप्चुलाइज ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि
उसकी मदर को पता ही नहीं है कि बाहर कैसे निकलना है, तो वो क्या करती है, रोज़ इसके ऊपर स्टोरी लाइन चलाती है। अब एक साइड उसका वो है जो कह रहा है कि ही इज़ अ गुड मैन, और एक साइड उसका ये है जो कह रहा है कि नो ही इज़ अ बैड मैन। तो अब उसको भागना एक्चुअली अपने फादर से नहीं है, अपने मदर से भागना तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि है। बट जो एक और पॉइंट है गगन, जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिया जाता है गुड एंड बैड का। तो अगर वो इधर से भागती है तो वो एक बुरी बेटी हो जाएगी। अगर वो यहाँ से वो इसलिए जा नहीं पा रही है, इसलिए भाग भी नहीं पा रही है, देखिए मैनिफेस्ट करेंगे तो भाग भी सकते हैं ना, लेकिन वो भागना भी क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि उसमें वो खुद को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगी, पूरी लाइफ गिल्ट में जीती रहेगी। पूरी लाइफ उसको ये होगा कि मैं अपनी मदर को छोड़ के भाग गई, क्योंकि उसकी मदर उसको रोज़ ये बता रही है कि मुझे तेरी कितनी ज़रूरत है। एंड बिलीव मी गगन, अगर आप किसी इंसान को ही बोलो ना कि तेरे बिना मेरा नहीं चलेगा, वो इंसान कई सालों तक रुकता है उसके लिए। वो अपनी ग्रोथ छोड़ देते हैं, वो अपनी सब पर्सपेक्टिव्स छोड़ देते हैं, बिकॉज सपने छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने ऐसा कह दिया कि मुझे आपकी ज़रूरत है। एंड एज अ ह्यूमन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस। तो हम कई बार ना उस स्पेस में एक अलग ही कर्मा कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें हर एक को इच्छा होती है कि कोई हमें भी इम्पोर्टेंट माने, कोई हमारे को भी वो स्पेस दे, कि हम भी किसी के लिए लाइफ में वो स्पेस होल्ड करते हैं। दैट इमोशन इज सो गॉड डैम पावरफुल इन ह्यूमंस। पॉजिटिव, करेक्ट। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग बिकॉज आई हैव रेड थ्रू दिस एंड सम क्वेश्चंस आर नॉट स्क्रिप्टेड, आई इट जस्ट कमिंग टू माय माइंड। सो दिस वन, इसमें ऐसा तो नहीं है कि ये भाग नहीं पा रही हैं या इनकी मदर इन्हें भागना नहीं देना चाहती, क्योंकि फॉर हर प्रॉब्ली शी इज़ द सपोर्ट सिस्टम, कि पूरे दिन में जो भी हुआ, लेट्स एज्यूम फॉर अ मिनट सब कुछ नेगेटिव हो रहा है मदर के लिए, मदर फादर की तरफ से कोई रिश्तेदारों में सपोर्ट नहीं है, एंड मे बी फादर हैविंग अ रिलेशनशिप विथ मदर्स सिस्टर एंड हर डॉटर। तो अगर ये चली गई, एंड इन द कॉन्वर्सेशन वी गॉट टू नो बेटा इज़ नॉट बॉदर्ड, तो अगर ये चली गई घर से, तो व्हाट इज़ हर फॉल बैक मैकेनिज्म? एंड इनएडवर्टेंटली और अननोइंगली शी इज़ डूइंग इट, कि मेरे को रोज़ बात किससे करूँगी, मैं किसको बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ, एंड दैट इज़ प्रॉब्ली होल्डिंग हर बैक। सो मदर इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल। मैंने बोला कि जो वो अपनी मदर से भागना चाहती है, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि वो अपनी मदर से भागना चाहती है, क्योंकि जब वो शाम को ऑफिस से आती है, जूते उतारे तो उसकी मदर शुरू हो जाती है। सो शी सेज मैं अब सुन सुन के थक गई हूँ। शी कोटेड दिस स्टेटमेंट कि मैं अब सुन सुन के थक गई हूँ, रोज़ वही बातें, मतलब मैं कोशिश कर तो रही हूँ। अब यहाँ पे गिल्ट फैक्टर भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है उसका अननोइंगली, कि वो एक अच्छी बेटी नहीं है, वो अपनी मदर को एक अच्छी स्पेस नहीं दे सकती, अपने फादर से उसको ले जा नहीं सकती, एक घर नहीं दे सकती। तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि इमोशनल स्पेस में धीरे धीरे ये ब्रीडिंग भी चालू हो गई है, ये सीडिंग मैनिफेस्ट हो रही है, और फ्यूचर में यही मैनिफेस्ट होकर क्रिएट हो जाए। मतलब बहुत लोग ना ये देख नहीं पाते हैं कि मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन, सीडिंग कब और कहाँ होती है कार्मिक स्पेस में, बट ये उसके आगे का आने वाले 5 सालों का फ्यूचर है। मैं बिना कुंडली देखे भी प्रेडिक्ट करके बता सकती हूँ, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा ये ना देख पाना, क्योंकि हम गुड या बैड के स्पेस से जी रहे, कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हुई, मैं एक अच्छी औरत या एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, बिकॉज फेमिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी मैस्कुलिनिटी या हमारी जो जिस जेंडर में जीता है वो उस जेंडर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो वो अगर एक बेटा है तो वो अपनी माँ के लिए अरे मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, तो वो जो गुड और बैड वाला कैरेक्टर आता है ना, वो हमें हमेशा डिप्लीट कर जाता है अपने रियल कार्मिक स्पेस से। तो हम रियल कर्मा देख ही नहीं पाते। हम ये देख ही नहीं पाते कि मान लेते हैं मैं पास्ट लाइफ से लेके आई हूँ, मुझे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं ये पास्ट लाइफ कर्मा है, तो अब आपके सामने ही है ना, आप क्या फिर से वही इमोशनल लूप ही तो हो रहा है। अब आप इस इमोशनल लूप में कहाँ देख पा रहे हो कि उस लेडी को, उस मदर को खुद से स्टैंड लेना है अपने लिए, उस बच्ची को अपनी ग्रोथ करनी है अपने लिए, अगर उसको अपनी फेमिनिटी, अपनी पावर को समझना है। अब देखिए दोनों ही औरतें पावर नहीं समझ पा रही हैं, ये पढ़ के और ये वो पढ़ी लिखी नहीं है तो भी, तो दोनों का लेसन क्या है कार्मिक, कि दोनों को पावर सीखना है, दोनों को पावरलेसनेस नहीं, वो पढ़ के भी पावरलेस स्टेट में और वो बिना पढ़े भी। तो कई लोग लेडीज होती है ना कि मेरी बच्चा पढ़ जाएगा तो वो बहुत शायद निकल जाएगा, लेकिन फाइनेंशियली निकल जाती हैं कई लड़कियां, लेकिन इमोशनली रिलेशनशिप वाइज वैसे ही रिश्ते अट्रैक्ट करती हैं। राइट राइट। नो आई थिंक सो आई एट द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड मैंने ये बोला कि काफ़ी लोग इन चीज़ों रिलेट कर पाएंगे और काफ़ी लोग इसमें मतलब कुछ सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे और प्रॉब्ली दे वुड ट्राई टू रीच आउट थ्रू क्वेश्चंस और डायरेक्टली टू यू।
ऐसे केसेस बहुत हैं इंडिया में, राइट? आई टेक अ वेरी फेमस एग्जांपल, एंड इफ यू रीड हिज स्टोरी, और आजकल काफ़ी फेमस है वो, दिलजीत दोसांझ. एट द एज ऑफ 11 years, बिकॉज हिज फादर कुड नॉट अफोर्ड, और ये बहुत होता था पहले ज़माने में, 50-60 साल पहले अगर जाइए, तो उन्होंने उनके मामा के घर भेज दिया उसको, ठीक है. नाउ दिस जेंटलमैन हैड 2 options. अगेन गेट इनटू नेगेटिव कि यार मेरे माँ बाप ने मेरे को घर से निकाल दिया, अगर मतलब ही दे डिडंट हैव मनी, दे शुड नॉट हैव had Birthed me in me, this in this life. Why did they? But look at that man today. He may be just 40 or 41 maybe, I don't know his age. So 11 में ये हुआ 30 साल, the way he has progressed, because he has a vision to achieve, and see where he is today, right? They say he is the only Punjabi artist who could do this what he has done. बहुत लोग आए, गुरदास मान जी आए, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी रहे हैं, but he has achieved so much. But if you look at the start, सेम प्रॉब्लम हमने पिछले वाले अपने एपिसोड में देखी थी. दैट जेंटलमैन हैड अ प्रॉब्लम बिकॉज फादर ने कभी पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं हुआ. व्हाट स्टक इन देयर माइंड वर्सेस व्हाट दिलजीत डिड. Second example, if you look at Rohit Sharma, who's Indian cricket captain, and everybody will relate. I'm taking these names because everybody could relate. Same happened with him at the age of 7. His parents did not have money. उन्होंने अपने नाना के घर, जहाँ दो मामा की फैमिली थी, तो कहते एक चॉल में, एक रूम में 10x12 में हम लोग 12 लोग सोते थे. So that is where he started that journey. But see today where he is at the age of 34, 35, whatever his age is also. So is it again your outlook also, या ये कर्म है, ये कार्मिक है, ये करना है तो होना है. हो सकता है उनके साथ भी अगर ऐसा होता तो they also would not have reached where they have reached. So how are these two different things? Because सबके कुछ कहीं ना कहीं होता है, पेरेंट्स मना करते कुछ चीज़ों के लिए, गर्ल्स के साथ पहले होता था. तो how you get stuck versus how these men have done, or because they are men and women then it's different. देखिए गगन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं हमेशा एक ही बात मानती हूँ कि आप अपने आप को कितना कमज़ोर मानते हैं, या आपके पास कितनी ऑप्शंस नहीं होती. कभी भी देखिए, जब आपकी लाइफ का ना बिल्कुल एंड पॉइंट होता है, आप तभी उठते हैं. भूख ही कर्म को करने पे मजबूर करती है. सर्वाइवल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वे यू क्रिएट योर एग्जिस्टेंस. आपने रोहित शर्मा का नाम लिया, आपने अभी दिलजीत जी का नाम लिया, बहुत ब्यूटीफुल पीपल, बट उन्होंने वो चॉइस की. हम हर जन्म में, मैं एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हर बार, हर पॉडकास्ट में, हर एपिसोड में एक बात बोलती हूँ, हर व्यक्ति के अंदर वो व्यक्तित्व परमात्मा का है, वो अंश है. कोई आदमी उसमें हार जाता है उस मोमेंट में, और कोई आदमी कहता है नहीं मैं लड़ जाऊँगा. अब लड़ जाऊँगा इज़ द मोमेंट. ज़्यादातर लोग अपनी डेस्टिनी, अपने नंबर, अपने बर्थ चार्ट, भगवान कृष्ण जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन जैसा व्यक्तित्व, जो एक क्या बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी स्टेट का इंसान, वो उस समय कमज़ोर पड़ गया. तब भी उस परमात्मा को आके उसको दिशा दिखानी पड़ी. उन्होंने तो यही बोला था ना कि आई विल ओनली प्ले द रोल ऑफ योर चैरियटर, बट एट दैट टाइम ही हैड टू मेंटर हिम. तो उस समय आप सुन पाते हो, कोई आपको मान ले, कोई अच्छा मेंटर मिल जाए, आप सुन पाते हो उस समय कि नहीं उठो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है. अभी कुछ दिन पहले मेरी एक वर्कशॉप थी, उसमें एक बच्चा, लास्ट सेशन था, ही जस्ट ब्रोक डाउन इन हिज इमोशंस कि आपने मुझे बता दिया कि मैं एंटरप्रेन्योर के लिए ही मेरा बर्थ हुआ. कई बार ना आप उस वर्ज पे होते हो जहाँ आप उस चीज़ को गिव अप करने वाले हो, तो कोई आता है आपको बोल देता है ये कर, तेरी ये जर्नी है, बस उतनी ही मोमेंट आपको पुश दे देता है. पर अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है और आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो, तो वो तो ऐसा है ना कि आप प्रसाद खा के भी बोलेंगे मेरे को शुगर बढ़ा देगा. तो वो पॉइंट है. आप हर लाइफ में एक ही चीज़ करने आते हो, अपनी पावरलेसनेस को पावरफुलनेस में कन्वर्ट करने में. रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पीड़ाएं अलग अलग हो सकती हैं, परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, कार्मिक अकाउंट्स अलग हो सकते हैं, फेसेस अलग हो सकते हैं, परिस्थितियाँ और पेन्स अलग अलग हो सकते हैं, बट एट द एंड सबको एक ही लक्ष्य है. पर्पस मतलब हो सकता है मैं गाना गा के पावरफुल फील कर लूँ, कोई क्रिकेट खेल के कर लूँ, कोई कहे कि मैं लोगों की हेल्प करके कर लूँ, कोई बोले मंदिर बना के कर लूँ. पॉइंट वो है ही नहीं. पॉइंट है कि आप मंदिर बना के भी अपने आप को पावरफुल फील कर रहे हो, कि आप खेल के भी पावरफुल फील कर रहे हो, कि गा के भी पावरफुल फील कर रहे हो, या उस स्टेज पे खड़े भी ऐसे कमज़ोर महसूस कर रहे हो. सो गेम इज़ नॉट ऑफ सक्सेस, गेम इज़ ऑफ पावरलेस टू द पावरफुल. तो उसमें जो हम कार्मिक अकाउंट्स आते हैं, जो भी हम चीज़ें करते हैं, वहीं से वो ग्रोथ होती है. सो आई थिंक एक तो ये आउटलुक है. दूसरा मैं अपने व्यूअर्स को सबको ये बोलूँगा
everybody needs a person who can enlighten, in this case how Richa is enlightening us. So I was reading somewhere कि आपने भी बताया कृष्ण जी और अर्जुन के बारे में, तो कर्ण ने एक बार कृष्ण जी से पूछा कि मैं पैदा इतनी अच्छी फैमिली में हुआ लेकिन मेरी मदर ने डिसोन कर दिया. देन मेरे गुरु क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था तो मुझे जहाँ से एजुकेशन मिलनी चाहिए थी वहाँ से नहीं मिली. फिर जो मेरे गुरु मिले, गुरु परशुराम, उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया. ठीक है. फिर जब मेरी माँ आके शी ओन्ड मी एंड टोल्ड मी दैट आई एम योर मदर, शी केम टू सेव हर 5 sons. अगेन इट वॉज अ डिसरिगार्ड फॉर मी वाइल शी एक्सेप्टेड, बट नेट नेट वॉज डिसरिगार्ड. और अब मैं जब मेरे को अपनी वो चाहिए होगी सारी पावर, वो श्राप की वजह से नहीं मिलेगी एंड आई विल डाई. सो वाई हैव आई गॉट दिस लाइफ, जबकि मेरे को दानवीर का, मैंने सबके लिए किया, मैं दानवीर हूँ. तो उन्होंने बोला देखो यार, इट्स अगेन वाई आई वॉज गिविंग दिस रेफरेंस दैट एवरीबडी हैज़ दिस प्रॉब्लम एंड यू आर एज अ गुरु एनलाइटनिंग देम और एज अ मेंटर एनलाइटनिंग देम. सो कृष्ण जी ने बड़ी अच्छी बात बोली. कह रहे आप मेरे को भगवान मानते हो? उसने कहा हाँ जी. कह रहे मैं कहाँ पैदा हुआ? मैं जेल में पैदा हुआ. मैं आ क्यों ना था इस दुनिया में? मरने के लिए, बिकॉज मेरा मामा मुझे मारना चाहता था. वहाँ से मैं निकला. माई मदर वॉज इन कारागृह बट आई वॉज फेड बाई अनदर लेडी हु बिकेम माई मदर. उसके बाद जिससे मैंने प्यार किया उससे मैं शादी नहीं कर पाया. ठीक है. यहाँ पे मैं लड़ सकता हूँ, मैं लड़ नहीं पा रहा. मैंने अपने मामा को मारा. फिर मेरे को सुदर्शन गुस्सा मुझे भी आता है. मैंने बोला तू 100 गालियाँ दे दे, तब तक मैं अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाऊंगा. जैसे ही 100 हुई मैंने भी चला. सो बीइंग अ गॉड ऑल्सो, सो इट्स हाउ यू लुक एट इट. दिस सो इज दिस कर्मा अगेन. कृष्ण जी हो, चाहे कर्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीष्म पितामह हो, दीज आर ऑल कर्मा जो अकाउंट आपको यहाँ पे Actually फुलफिल करके देखिए जाना है. कि इतनी ब्यूटीफुली आपने अभी बात बोल दी कि हर एक कैरेक्टर ने आपको ये दिखाया कि कर्म का चयन कैसे करना है ना. Exactly. तो कर्म का चयन आप कहाँ पैदा हुए, किस परिस्थितियों में, वो मैटर ही नहीं करता. मैटर क्या करता है कि उस क्षण क्या आप देख पाते हैं. मैं हमेशा योग माया की बात करती हूँ. क्या आप उस समय उस इल्यूजन को, योग माया इज नथिंग बट इंग्लिश में इल्यूजन, आप उस इल्यूजन को देख पाओगे, उस इल्यूजन के मिराज को तोड़ पाओगे, या उस इल्यूजन में फंस जाओगे और नए फेसेस क्रिएट कर लोगे और नई मास्किंग क्रिएट कर लोगे. तो इसके केस में इस बच्ची ने अब जैसे हमने उसका सेशन किया एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिजल्ट्स. तो जल्दी ही आपके साथ रिजल्ट्स नहीं, जल्दी अच्छा आएगा. तो आई थिंक जैसे आपने कहा, आपने बहुत अच्छा एक वो दिया. तो आई थिंक टू कम एंड यू नो स्पीक टू रिचा, देयर इज लॉट ऑफ होमवर्क दैट यू हैव टू डू, राइट? वन आर ऑफ कोर्स यू सी द आईपैड, आई हैव अ स्क्रिप्टेड questions. Some of them come naturally to you. Some of them, because you have to be with such an intelligent person who knows all this, you have to also read. So, and I have got this feedback from my very close friends that your way of thinking, the way it was versus what it is now. नहीं तो मैं ये कर्ण, अर्जुन, ये कृष्णा, ये सब बातें I never used to do maybe 2-3 years back before we got into these sessions. I know you much more longer than that. So my takeaway. We also have a karmic account. I think the takeaway is that all of us have problems, all of us have these karmic accounts, all of us have some energy locked somewhere, but we have potential. So please, you know, use, as Karna asked that question to Krishna, we have the opportunity to, you know, talk to Richa, meet her, write to her, and get our mentor to help us guide or channelize the energy or unblock the energy. So I would suggest please use. And thank you, Richa, again for an enlightening session. Thank you. Thank you.